Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers and aspirants. Hope you will be fine by the grace of Allah Almighty. Dear students, you are watching Bukhari Study Officials and I am Asghar Bukhari. As you know that we have started a series regarding our O-levels Islamic studies and we are covering our topic. So the topic that I am going to discuss with you today, that is upbringing, first revelation and Holy Prophet's experience in the cave of Hira and call to prophethood. So if you are new on this channel and still you did not subscribe it, please subscribe, like and share, inshallah. And you can also ask any question if you want. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, we will know that in which circumstances and what were the conditions when Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was born in that society. So conditions of Arabia at the time of the Holy Prophet's birth. You know, there were no rights for women in that society. People buried their daughters, alive daughters, and छोटी छोटी सी बातों पर जो है लड़ाई और झगड़ा हो जाता. और इसके अलावा there were no any rules and regulations for any society. There were no any rights of slaves, and there were no any the right directions for inheritance and so on. ऐसी एक बड़ा एक अजीब सा जो है एक एटमॉस्फेयर और एक अजीब सी सोसाइटी जो है उस वक्त मौजूद थी. और सबसे बड़ी बात ये थी कि पॉलीथीइज्म जो है उसने अपने आप को जो है अपने पंजे गाड़ लिए थे कुफर ने. और इवन के दे हैंग्ड अप्रोक्सीमेटली 360 idols on the walls of the Holy Kaaba. So in these circumstances, and they have forgotten the real teachings of Hazrat Ibrahim alayhi salam and Hazrat Isa alayhi salam. So they made several thousands idols for their worship. So in these conditions, Allah Almighty sent his holy prophet, his prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There was no settled government and no law in the land. The affairs of each tribe were governed by its own chief. हर चीफ का एक हर ट्राइब का एक अपना एक चीफ होता था और अलग अलग से जो है उनकी गवर्नमेंट होती थी. तो कोई एक सिमेट्री नहीं थी उनकी जो है वो गवर्नमेंट के अंदर. तो इस एतबार से जो है ये एक कंडीशन थी अरेबिया की बिफोर द बर्थ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अब हम आते हैं वो जो अपब्रिंगिंग है, बर्थ एंड अपब्रिंगिंग ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. उसमें मेरी एक अलग से वीडियो है. हर्बुल फिजार पर एक वीडियो अलग से मौजूद है. हल्फुल फजूल पर मौजूद है. मैरिज विद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और टाइटल दैट गॉड होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टाइटल्स असादिक एंड अमीन, उसके ऊपर एक अलग से जो है वीडियो मौजूद है. आज सिर्फ जो है वो सिर्फ कॉल टू प्रॉफिटहुड पर बात हो रही है और इसके अलावा होली प्रॉफिट्स फर्स्ट एक्सपीरियंस इन द केव इस पर बात हो रही है और टाइप्स एंड काइंड्स ऑफ रेवलेशन इस पर जो है बात हो रही है. सो मेथड्स ऑफ रेवलेशन सबसे पहले हम इस पर बात कर लेते हैं. होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम saw several times Hazrat Jibreel alayhi salam, several times. First of all, when Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam received first revelation, उस वक्त उसके बाद फिर बहुत सारी मकामात पर Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam saw Hazrat Jibreel alayhi salam in his real form. Second one, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam before नबी पाक अलैहि सलाम ने इजहारी नबूवत से पहले जो भी ख्वाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते वो अगले दिन पूरा हो जाता है, चंद दिनों के बाद पूरा हो जाता. तो ये जो ख्वाब है, ड्रीम जो है, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ प्रोफेसी, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ प्रॉफिटहुड. तो सेकंड मेथड वाज ड्रीम्स. फर्स्ट वाज हजरत जिब्रील अलैहि सलाम, सेकंड वाज ट्रू ड्रीम्स, थर्ड वन डिवाइन साउंड्स. होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड sometimes the Holy Prophet ﷺ would hear the sound of bells ringing or bees buzzing, at the end of which these words of the revelation would be inscribed
इन हिज हार्ट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसी के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि ये वाला जो है जिसमें मुझे साउंड जो है साथ में सुनाई देता था, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व्हेन रेवलेशन केम द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सपीरियंस्ड डिफरेंट sensations. He heard ringing sounds. He perspired in the cold. He became so heavy that the animal he was riding on and his companions could feel the weight of his body. तो ये जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये बड़ा एक अजीब बड़ी सख्त कैफियत होती है। देखें बेटा, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में शाह फरमाया लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह, कि अगर हम इस कुरान पाक को पहाड़ों पर नाजिल करते तो पहाड़ भी इसकी हैबिट से जो है वो रेजा रेजा हो जाते, वो खौफ ज़दा हो जाते। तो ये तो फिर भी इट वाज द हार्ट ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैट बियर्ड ऑल बर्डन। And then Holy Prophet ﷺ said to his companions, come and ride from me. This is the revelation of the Allah Almighty, of Allah Almighty. So divine sounds. Fourth one, form of man. कई मरतबा हज़रत दाहिया कल्बी, the prominent companion of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, हज़रत दाहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी सूरत में, उनकी शक्ल में, उनका चेहरा इख्तियार करके, उनकी बॉडी लेकर के हज़रत जिब्रील जो है होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते। डायरेक्ट कन्वर्सेशन विद अल्लाह ऑलमाइटी। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, सो अल्लाह अलमाइटी ने उन पर डायरेक्ट विदाउट द लिंक ऑफ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, अल्लाह अलमाइटी ने डायरेक्ट रेवलेशन जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की। तो दीज आर द 5 काइंड्स और 5 मेथड्स ऑफ रिसीविंग रेवलेशन। नेक्स्ट चलते हैं। एट द एज ऑफ, अच्छा मैंने बताया कि जो अरब की जो कंडीशंस थी उस वक्त वो बहुत पुअर थी। वो फाइनेंशियली उनकी जो है सूद का कारोबार था, जुए का कारोबार था, मजहबी तौर पर जो है उन्होंने आइडल्स बना लिए हुए थे। राइट्स की बात करें तो स्लेव्स के राइट्स का कोई ख्याल नहीं था, बीवियों की कोई राइट्स नहीं थे, बेटियों के राइट्स नहीं थे। इवन कि बेटियां पैदा होती तो अलाइव उनको जो है वो बरी कर दिया जाता। और इसके अलावा जानवरों, एनिमल्स के राइट्स नहीं थे। एनिमल्स के लिए पर इतने जो है ना वो प्रोसिक्यूशंस होते, उनको एनिमल्स को कि ये हमारे एनिमल्स हैं उसके ऊपर निशान लगा दिया जाता, उनकी दुम काट दी जाती, उनके कान काट दिए जाते, उनके सींग उतार दिए जाते। तो ये सारे प्रोसिक्यूशंस जो है ना होते थे। तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस, हर ट्राइब का अपना अपना एक अलग से चीफ होता, और छोटी छोटी बातों पर कई बरस जो है कई साल जो है वहाँ पर लड़ाइयाँ होती रहती। तो इन सारी सिचुएशंस में होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑब्जर्विंग ऑल दीज थिंग्स। ये बेटा याद रखिएगा कि नबी जो है वो नबी होता है। होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का जब अल्लाह पाक ने इशारा फरमाया, जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, देन होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का इजहार फरमा दिया। सो एट द एज ऑफ 40 होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू गो इन द केव ऑफ हिरा फॉर मेडिटेशन। और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया था कि अब वो वक्त करीब आ गया है कि जब जो है वो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है और ये सीक्रेट कॉज जो है ये मुझे सौंप दिया जाएगा। सो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ब्रॉट हिज फूड विद हिमसेल्फ, और कुछ खाने पीने का और सामान अपने साथ, डेट्स ले जाते, पानी ले जाते, खाना वगैरह अपने पास ले जाते। और कई दिन जो है होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज पॉन्डरिंग इन द केव ऑफ हिरा। एट द एज ऑफ 40 हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम केम, और वो सारा वाक़या इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। तो ये सारा वाक़या जो है ये आप इसके अंदर जो है वो मेंशन कर सकते हैं कि किस तरीके से जिब्रील अमीन आए और उन्होंने आकर जो है होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप पढ़िए। सो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे जो रिप्लाई किया वो सारी कन्वर्सेशन आपके नोटिस में है। सो आप वो वहाँ यहाँ पर आंसर में आप मेंशन कर सकते हैं। और वो जो नबी पाक ने सबसे को स्क्वीज किया, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा 3 मरतबा जिब्रील ने कहा, फिर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा आना बिकारीन। तो इस एतबार से जो है आप ये सारा इंसिडेंट लिख सकते हैं।
On returning from Hira, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam saw Jibreel in his true form. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam ने फरमाया कि मैंने जिब्रील को देखा कि जिब्रील अमीन जो है ज़मीन से लेकर आसमान तक आपने अपने विंग्स जो है वो फैलाए हुए थे और पूरे के पूरे जो है वो स्काई जो है उसको हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कवर किया हुआ था. तो इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam saw Hazrat Jibreel in his real form. So after this major incident, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam came to Hazrat Khadija radhiyallahu ta'ala anha, his first beloved wife. So Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam greatly shocked and stunned after receiving first revelation. हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो इशार फरमाया वो एज ए कोटेशन आप इसको पुट कर सकते हैं और लाजमी करेंगे आप इस क्वेश्चन के आंसर में. अल्लाह विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल इविल्स. यू आर गुड टू योर रिलेटिव्स, ट्रू टू योर लॉर्ड वर्ड, ट्रू टू योर वर्ड. You aid the needy, you support the weak, and you respond to the call of the distressed. जो भी मायूस लोग हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मदद के लिए दौड़े हुए चले जाते हैं. सो इन अल्फाज से जो है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कन्वर्सेशन की. सो शी टुक टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज cousin Warqa bin Nawfal, who embraced Christianity. He was first in the beginning he was Jew, and then he embraced Christianity, and he was a scholar of these previous two holy books. So Warqa bin Nawfal was a scholar of the Torah and Injil. Reply of Warqa bin Nawfal. वर्का बिन नौफल ने जब ये सारी बातें सुनी तो उसने जो रिप्लाई किया होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसके मैंने सिर्फ 4 पॉइंट्स बनाए हैं, 4 or 5 points approximately. You are the last prophet of Allah Almighty. First of all उसने recognize किया और उसने कहा कि ओ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, you are the last prophet of Allah Almighty. The angel was Jibreel, and वो जो केव हीरा में आपके पास आए थे, he was Jibreel, and he has been coming with revelation to the previous prophets. So ये वही जिब्रील है जो दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के पास भी रेवलेशन लेकर आते रहे हैं. All Arabs will become your enemy, and he also said that all Arabs will become your enemy. You will have to left Makkah. You will have to left Makkah, and at in the end importance of this event. ये हमारे क्वेश्चन का आखिरी पॉइंट है कि हमारी इस इवेंट की इम्पोर्टेंस क्या है. बेटा इसके साथ जो है वो जो एज ऑफ इग्नोरेंस था वो ख़त्म हुआ. एज ऑफ इग्नोरेंस ख़त्म हुआ और इकरा टू रीड, इससे जो बात सामने आई वो ये आई कि वो लोग जो तालीम हासिल करते रहेंगे, हर मैदान में आगे बढ़ते रहेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हीं को इज़्ज़त अता करेगा. तो इसके साथ पे जो है वो जो एक बहुत बड़ा टास्क होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असाइन किया गया था उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा करना था. और इसके साथ पूरा एक ग्लोबल और जो पूरी एक यूनिवर्स के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जो एक चेंज आना था वो इसके साथ जो है वो आना शुरू हो गया. और इसके साथ ही जो है जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली वही रिसीव की तो इससे फिर एक ईयर जो है स्टार्ट हुआ जिसको कहा गया फर्स्ट ईयर ऑफ नबवी. सो इस एतबार से जो है दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. I hope that it would be very helpful for you inshallah. So if you still did not subscribe this channel, please subscribe, like and share. इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए. अस्सलाम वालेकुम.